اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، روس اور ترکی کے درمیان جنگ کا آغاز ہونے لگا ہے۔ روس کی طرف سے شام پر حملوں کی وجہ سے ترکی حکومت کو انتہائی غصے میں کر رکھا ہے، جس کے بعد بڑی جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ کیا یہ خطہ آگ اور بارود کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ ترکی فوج نے لیبیا میں فوجی اڈہ قائم کر لیا ہے۔ اس حوالے سے زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ جبکہ دوسری جانب آیا صوفیہ کے معاملے پر یورپی یونین بھی ترکی کے خلاف میدان میں اتر چکی ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے ترک صدر کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین اور تجزیہ نگار ان حالات کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور جنوبی ایشیا میں کون سی قوت کیسا کھیل کھیل رہی ہے؟ آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، ملک شام میں جاری خانہ جنگی کے حوالے سے پوری دنیا کے انسان آگاہی رکھتے ہیں۔ اس علاقے کو متنازع بنانے میں بھی اسرائیل، امریکہ، روس اور غیر مسلم قوتوں کا ہاتھ ہے۔ کئی سالوں سے جاری جنگ نے شام کی آبادی، شہروں، قصبوں اور جنگل بیابانوں میں قہر ڈھا رکھا ہے۔ روس بھی ان ممالک میں شامل ہے جو شام پر آئے روز بمباری کرتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی کچھ ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ اطلاعات کے مطابق شام کے شہر الباب پر فضائی حملے کے بعد ترکی اور روس کے تعلقات مزید کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ روس نے شمالی شام شہر الباب پر فضائی حملہ کیا، جس میں ایک شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ شام میں واقع الباب شہر کو فروری 2017 میں ترکی اور شام کی افواج نے داعش کے قبضے سے چھڑایا تھا۔ الباب شہر پر روس کا فضائی آپریشن 2018 کے بعد پہلا حملہ بتایا جا رہا ہے، جس میں عورتوں اور بچوں سمیت دیگر شہری بھی نشانہ بنے۔ ماہرین کے خیال میں روس حالیہ حملے کا مقصد الباب میں ترک فوج کی بڑھتی ہوئی تعداد پر ترکی کو خبردار کرنا تھا۔ ناظرین گرامی، کہا جا رہا ہے کہ حملے کا مقصد ترکی کو واضح پیغام دینا کہ وہ شام کے شہر ادلب میں جہادی تنظیموں کی عدم موجودگی کو یقینی بنائے۔ ادلب میں باغیوں کے روسی افواج کے گشت کے دوران حملوں کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ 14 جولائی کو باغیوں نے ترک اور روس افواج پر مشترکہ گشت کے دوران خودکش حملہ کیا، جس میں 3 روسی فوجی زخمی ہوئے، جبکہ روس کی بختر بند گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ روس نے جوابی کارروائی میں باغیوں کے اڈے پر فضائی حملہ بھی کیا۔ ماہر تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ باغی تنظیموں پر حملے کے نتیجے میں ترکی بھی سرجیکل آپریشن کا آغاز کرے گا، جس کے تحت روس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ ان باغی تنظیموں کے خلاف فوجی کارروائی کرے، یا پھر مخالف جنگجو گروہوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ باغی تنظیموں پر حملہ کریں۔ یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ روس اور ترکی کے درمیان ستمبر 2018 میں ہونے والے معاہدے کے تحت ترکی نے دہشت گرد گروہوں سے نپٹنے کی ذمہ داری لی تھی اور ادلب میں 2 ہائی ویز آمد و رفت کھولنے کے لیے وعدہ کیا تھا۔ رواں سال مارچ میں ایک مرتبہ پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا معاملہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت تمام شدت پسند گروہوں کو ختم کرنے پر اتفاق ہوا، جن کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔
जिन में अलकायदा से मुंसलिक सबसे ताकतवर जिहादी ग्रोह हयात तहरीर शम्स भी शामिल हैं। अब से रूस की हुकूमत तुर्की पर जोर दे रही है कि अदलब में तमाम बागी ग्रोहों और तंजीमों को गैर मुअस्सर करे। तुर्क हुकाम का मौक़िफ़ है कि तुर्की का रूस अदलब में M4 हाईवे को आमदोरफ्त के लिए महफूज करने का मुतालबा है और रूस अदलब में बदअमनी की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। अदलब शहर का शहरियों का तुर्क और रूसी दस्तों का गश्त के खिलाफ एहतजाज रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, जो रूस के लिए बाइस तशवीश है। रूस हालिया फ़िज़ाई हमले से तुर्की को पैगाम देना चाहता था कि शाम के तनाज़े को बुनियाद बनाकर रूस शाम के अलावा बशमूल लीबिया में मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो तुर्की भी सख्त कार्रवाई करेगा। नाजरीन, तुर्की रूस इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र तुर्क हुकाम ने भी एक अहम फैसला लिया है। लीबिया के एक शहर को तुर्क फौज ने फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया है और इस शहर में मौजूद तुर्क फौज के लिए अस्करी साजो सामान और कमक भेजी गई है, जबकि माहिरीन के मुताबिक सेटेलाइट से हासिल तस्वीर में मिसराता शहर के इतराफ ठिकानों पर ड्रोन तैयारों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तुर्की की फौज ने मिसराता में फ़िज़ाई अड्डे के जुनूब में पनाहगाहें कायम कर रखी हैं। उन पनाहगाहों को रूस और इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसराता नामी शहर एक अरसे से तुर्क फौज के कंट्रोल में है। लीबिया में भी इस वक्त शदीद हाना जंगी जारी है और इस इलाके में दाइश नामी तंजीम की बड़ी तादाद पाई जाती है, जबकि कई मुसल्लह ग्रोहों ने लीबिया को अपना घर बना रखा है ताकि वो अपने मफादात की हिफाजत कर सकें। तुर्क फौज यहाँ के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और लीबिया की हुकूमत से मिलकर शिद्दत पसंद ग्रोहों को कुचला जाता है, जिसे गैर मुस्लिम कुव्वतें पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि आए रोज़ तुर्की के खिलाफ बड़े इक़दामात और बयानात सामने आते रहते हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक अहम बयान सामने आया जिसमें यूरोपीय यूनियन ने तुर्क हुकूमत की मुखालफत की। फ्रांस की एक खातून रुकन पार्लियामेंट ने अपने हालिया बयान में कहा है कि लीबिया की सूरत हाल ख़तरनाक है और ये तमाम फरीकों की गलतियों का नतीजा है और यूरोप के तुर्की के साथ ताल्लुकात नहायत पेचीदा मरहले तक पहुँच चुके हैं। इस बात ने यह वाज़ह कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में यूरोपीय यूनियन भी तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज खोलने जा रही है, जिसकी बड़ी वजह आया सूफिया को अजायब घर से मस्जिद में तब्दील करना है। अजीज़ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के अरकान कहते हैं कि खारजा पॉलिसी के मामलात में यूरोप का इत्तेफाक राय ज़रूरी है। फ्रांसी पार्लियामेंट के मुताबिक तुर्क के अज़ाइम इश्तियाल अंगेज़ हैं और ये यूरोप की पॉलिसी के साथ मेल नहीं खाते। दूसरी जानब तुर्की के एक बहरी जहाज़ ने कब्रस के साहिलों के जुनूब मगरब में कुदरती गैस की तलाश के लिए खुदाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अगरचे बैनुल-अक़वामी सतह पर इन इलाकों की खुदाई का काम रोकने के लिए मुतालबात सामने आ चुके हैं, ताहम इसके बावजूद तुर्की की जानिब से ये कार्रवाई जारी है। अलावाज़ी यूरोपीय यूनियन भी कई बार खुदाई के अमल की मज़म्मत कर चुकी है, बल्कि ये धमकी भी दे चुकी है कि अगर इन सरगर्मियों को तोसी देने का सिलसिला जारी रहा तो अंकारा हुकूमत को सज़ा देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। जबकि अंदर की एक खबर यह भी कहती है कि अमेरिका, रूस, इसराइल और यूरोपीय यूनियन मिलकर तुर्की पर पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि तुर्की जनूबी एशिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और इसे कई दूसरे ममालिक की
सपोर्ट भी हासिल है, जबकि रजब तैयब एर्दोगान सयूनी ताकतों के खिलाफ सख्त मिजाज रखते हैं। माजी में कई ऐसे फैसले तुर्की की जानिब से देखने में आए जिन्होंने दुनिया भर को हैरान और परेशान किए रखा। आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के मामले पर भी दुनिया तुर्की के सदर के फैसले के खिलाफ कई बयानात दे रही है, जबकि रजब तैयब एर्दोगान ने लगे हाथ इसराइल को भी खबरदार कर दिया है कि अब वो रफ्ता रफ्ता फ़लस्तीन की जानिब तवज्जो करेंगे ताकि बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया जा सके। आया सूफिया का मस्जिद में दोबारा से बहाली बैनुल अक़वामी लिहाज से भी और कौमी हुकूक की पासदारी के एतबार से भी ऐन इंसाफ था, मगर आलमी ताकतों ने इस पर एतराज़ करना अपना हक समझा और हर तरफ से इसकी भी मजम्मत शुरू कर दी गई। इस तारीखी फैसले पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, यूनेस्को और रूसी ऐवान बाला भी गम में डूबे हुए हैं। अजीज दोस्तों, माजी की जंगों खासकर स्पेन की फतह के वक्त मसाजिद को मंदिरों और चर्चों में तब्दील किया गया, जबकि अब भी मुतादद वाक़यात ऐसे पेश आते हैं, मगर यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका इन मौक़ों पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला भी आपके सामने है, जबकि यूनान में उस्मानी दौर की मस्जिद पर कब्जे के मामले में मगरिब के कान में जून तक नहीं रेंगी। खता के यूनान में उस्मानी दौर की बच जाने वाली ऐसी दर्जनों मसाजिद हैं जिनका तशख़्ख़ुस तब्दील किया जा चुका है। अब ये मसाजिद नुमाइश का मराकज़ हैं या फिर सिनेमा घरों में तब्दील की जा चुकी हैं। सिर्फ एक बरस में इसराइल में अरबों की तारीखी मस्जिद को शराब खाने में तब्दील करने पर भी पूरी दुनिया में खामोशी का आलम था। गुज़श्ता बरस फ़लस्तीन में वाक़या मस्जिद अल अहमर को इसराइली म्यूनिसिपैलिटी ने नाइट क्लब में तब्दील कर दिया। मुस्लिम उम्मा की मसाजिद और तारीखी यादगारें जो एक सदी तक हमारे पास थीं, वो तमाम मुख्तसर वक्त में तबाह कर दी गई। दूसरी जानिब तुर्की की अदालत का आया सूफिया की तारीखी इमारत का दोबारा मस्जिद की शक्ल में बहाल करने का फैसला आते ही मगरिब के रद्दअमल में तेजी आ चुकी है। मगरबी सरमायाकार तुर्की की स्टॉक मार्केट से अब तक 8 अरब डॉलर रकम निकाल चुके हैं, जिसका बुनियादी मकसद तैयब एर्दोगान को सबक सिखाना है कि इस मर्द मुजाहिद ने आया सूफिया को म्यूजियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की जुर्रत कैसे की। पिछली 2 दहाइयों के अरसे में इस्लाम पसंद लीडर बनकर उभरने वाले तैयब एर्दोगान उन तमाम हरबों से बखूबी आगाह थे, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। आज तैयब एर्दोगान फातेह कुस्तुनतुनिया सुल्तान फातेह मोहम्मद दोइम की तरह मजलूमों की आवाज़ बन चुके हैं। सुल्तान फातेह मोहम्मद दोइम भी एक आलम और मुजाहिद थे। तैयब एर्दोगान ने इस्लाम को सियासी नारा बनाने की बजाय इस्लाम को एक तर्ज ज़िंदगी के तौर पर अपनाने को तरजीह दी। उनकी ताकत उनके फतवे नहीं बल्कि जस्टिस और डेवलपमेंट है। आलम इस्लाम के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। यूरोप ने हमेशा इस्लाम के खिलाफ दोहरा रवैया इख्तियार किया है। वही तर्ज अमल आलम इस्लाम के यहाँ हुकूक की पामालियों के ज़ुमरे में आता है। अगर वो इंसाफ के साथ तारीख पर नज़र डालें तो आया सूफिया के मुतालिक अदालत के फैसले में उन्हें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी, मगर तासुब ये है कि मगरब हर मरहले में हक़ाइक़ को पोशीदा रखता है। जी तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस ज़रूर बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द ही हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा